Hello dear students, I hope you all are well. Today for class 2 macroeconomics under the chapter money we will discuss meaning of money and its functions. Its functions tells that how money has overcome how money has overcome the drawbacks of barter system of exchange. The drawbacks of barter system of exchange. So let us first understand the legal definition of money. So we say that money is that has a legal tender under the law of land. Under the law of land. It means अगर मैं बात करूं जो करेंसी नोट आपकी पॉकेट में आज हैं दे आर आइडेंटिफाइड बाय द लॉ ऑफ लैंड, इसलिए वो लीगल टेंडर है, राइट। तो हम इसको लीगल टेंडर मनी बोलते हैं। तो रिमेंबर 8 नवंबर 2016 को द करेंसी नोट्स विच आर फोरफिटेड 500 वाले और 1000 रुपीज वाले दे आर नो मोर अ लीगल टेंडर ऑफ अ कंट्री, राइट। अनदर कम्स the functional definition of money. We say money is what money does. Money is what money does. अब मनी क्या करता है ये हम देखेंगे। Money basically performs two major categories of functions. The very first is the primary functions and the other is the secondary functions. And these functions overcome the drawbacks of barter system. So under primary functions, we first have medium of exchange. अब medium of exchange क्या कहता है? That sale and purchase have been separated. So we say that the introduction of money has separated the acts of sale and purchase. It means आपको कुछ सेल करना है, you can sell it for money. मुझे एक पेन बेचना है, I'll charge ₹10 and sell a pen. If you want to purchase, you can purchase it for money. If I want a bike, I will pay 60,000 rupees and I'll buy a bike. Getting my point? तो क्या किया इन्होंने? It has separated the acts of sale and purchase. It means there is no more need of या no more limitation of double coincidence of wants. It means ये कहता था if I want to sell something I'll have to purchase something, or if I have to purchase something I will surely have to sell something under barter system of exchange. लेकिन पैसा आने से both the acts have been separated, right? The next comes measure of value, or we say unit of account. अभी क्या कहता है जी कि मनी आने से we could decide prices of things. It means we have a monetary unit. We have a monetary unit. Now, if I say that if milk is worth ₹50 per liter and refined oil is worth ₹100 per liter, right? So I actually know
कि पर लीटर के लिए मुझे कितना कॉस्ट पे करना है। अर्लियर हमने पढ़ा था इन द ड्रॉबैक्स दैट आई वोंट एक्सचेंज 1 लीटर ऑफ मिल्क against 1 liter of refined oil because one party generally suffers because the exchange ratio is randomly fixed। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें रेट मालूम है। So if I have to buy milk, I know that 1 liter of milk is worth half liter of refined oil। So it gives us a unit of account कि पर यूनिट क्या चार्ज हमें करना है या क्या हमें पे करना है। Next comes the secondary functions। Next comes the secondary functions। अब secondary functions में हमारे पास पहला आएगा standard of deferred payment। Under drawbacks of barter system we have studied कि deferred payment या contractual payments, future payments easy नहीं होती, क्योंकि issue आता है या तो which specific commodity में हमें पे करना है, या issue आता है कि किस क्वालिटी का रीपे करना है। लेकिन जब हमारे पास मनी आया, क्या आया जी, मनी। तो मनी क्या आया जी, हमने पढ़ा है इट इज जनरली एक्सेप्टेबल, राइट, इट इज होमोजीनियस, राइट, इट इज ड्यूरेबल, एंड इट्स वैल्यू इज स्टेबल। तो इस वजह से हमें मालूम है कि अगर आज मैंने कोई भी चीज क्रेडिट पे लिया है और उसकी वर्थ है ₹100, तो आज मुझे उनको 100 रुपए का नोट देना चाहिए था। तो अगर मैं आफ्टर 1 मंथ 100 रुपए दे रहा हूं, सो दैट इज इक्विवेलेंट। सो मनी हेल्प्स इन डेफर्ड पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स। नेक्स्ट कम्स स्टोर ऑफ वैल्यू। हमने पढ़ा था कि इन द फॉर्म ऑफ कमोडिटीज द स्टोरेज इज नॉट इजी, इवन द स्टोरेज कॉस्ट इज हाई। स्टोरेज कॉस्ट इज हाई। तो और गुड्स जो है वो पेरिशेबल होते हैं, राइट। तो क्या होगा, हम उनको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स, पेपर टाइटल्स जिनको हम बोलते हैं, या करेंसी नोट्स, एग्जाम्पल आपको ₹2 लाख स्टोर करने हैं, राइट। तो क्या होगा, आप 100 नोट्स रख लेंगे 2,000 रुपए के। बट अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए में वी गेट 4 बफलोज, तो उनको संभालना भी मुश्किल है, स्टोरेज कॉस्ट भी हाई है, मेंटेन करना भी टफ है। गेटिंग माय पॉइंट। तो स्टोर ऑफ वैल्यू इजी हो गया, या स्टोर ऑफ वेल्थ जो है वो इजी हो गया बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, राइट। लास्ट कम्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में हम बात करते हैं परचेजिंग पावर कैन बी ट्रांसफर्ड। अब मैं बात करता हूं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यूएसए, माय ब्रदर इज इन यूएसए एंड ही वांट्स टू सेंड मी सम मनी। कोई रेमिटेंस दे रहे हैं, तो थ्रू बैंक ट्रांसफर्स, या जो हम मनी ट्रांसफर की बात करते हैं, राइट, एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वो मुझे पैसा भेज सकते हैं। तो मशीन्स जो इनमूवेबल थी वो पॉसिबल हुई, जो प्रॉपर्टी इमूवेबल है उसको हम नहीं कर पा रहे थे ट्रांसफर, वो आज इजी हो गया बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। गेटिंग माय पॉइंट। नाउ लेट्स डू एन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। A cloth mill owner
wants to pay its employees, वो अपने एम्प्लॉइज को पे करना चाह रहा है इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट क्या है? क्लॉथ। तो आपको बताना है वाई इज इट कन्वीनियंट फॉर एम्प्लॉइज to get their compensation in cash, in the form of money, rather than cloth. हाँ जी, we obviously know the answer, क्योंकि money has a universal basic characteristic, that is universal or general acceptability. Getting my point? So it means it will facilitate the medium of exchange, or we can say facilitation of exchange becomes easy and possible. बात समझ आई? तो अब इसका मतलब क्या है समझिए। इसका मतलब ये है कि जब उन एम्प्लॉइज को मार्केट में ग्रोसरीज लेने जाना है, शूज खरीदने हैं, ऑप्टिकल्स की शॉप पे जाना है, फर्नीचर लेना है, तो एवरीबडी विल नॉट बी रेडी टू एक्सचेंज दीज गुड्स फॉर क्लॉथ, बट दे आर रेडी टू एक्सचेंज और सेल इट फॉर मनी। गेटिंग माई पॉइंट? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।